Hello everyone, how are you all? Let me know in the comment section below. In today's video, I am going to discuss as always some useful daily use English sentences. So these sentences are very common and very useful for speaking point of view. So you are requested to watch the video till the end. मुझे यकीन है कि वो ये चीज़ें जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए कहता है। तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम श्योर ही सेज दीज थिंग्स। ये चीज़ें डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर, और डेलिबरेटली इज़ एन adverb, okay, to annoy me. I am sure he says these things deliberately to annoy me. annoy मतलब परेशान करना। अगर तुम टीवी के ज़्यादा नज़दीक बैठोगे तो तुम्हारी आंखें ख़राब हो जाएंगी, बिकॉज द रेज विच आर कमिंग आउट ऑफ द टेलीविज़न इज़ वेरी हार्मफुल टू अवर आइज़. इफ़ यू सेट too close to the TV, you will hurt your eyes. If you sit too close मतलब बहुत नज़दीक किसके, to the television, टीवी के, you will hurt your आइज़, तुम अपनी आंखों को नुकसान पहुंचाओगे या फिर ख़राब करोगे. अब टीवी देखने का मेरा समय है. When you have completed your homework, so you are all set to watch the television, your mother will not scold you because you have done whatever the work it was given to you. So now you can say with proud, it's my time to watch TV. It's my time. It's is a contraction of it and is. इट्स माई टाइम, मेरा समय है क्या करने का, टू वॉच, देखने का, टीवी. ये उसके लिए बहुत दर्दनाक था. when something was very painful to someone, that means that particular thing affects his life or her life. if that is a girl, her life. if that is a boy, his life. तो इसकी इंग्लिश बनेगी इट्स टू पेनफुल. Painful is an adjective over here, so remember this thing as well. It's too painful for her. लड़की है इसलिए हमने we are using her as a object. Okay, so next sentence, मेरे भाई ने मुझे उससे दूर रहने के लिए कहा. तो इसकी इंग्लिश होगी when somebody is not good for you, so somebody can suggest you to stay away from someone. तो आप बोल सकते हो my brother told me, second form of tell, because of past and definite tense it is my brother told me to stay away from her. वो लड़की है इसलिए we are using her. अगर कोई लड़का है तो आप उस जगह him का यूज़ करेंगे. My brother told me to stay away from her. तुम कुछ बुरा होने से रोक नहीं सकते हो, because after all we are human being, not the God. The situation is not our hand, the control is not in our hand. Whatever it will happen, it is all up to the God and the situation how it is said to be at the moment. You can't stop something bad, कुछ बुरा होने से, from happening. You can't stop, तुम नहीं रोक सकते कुछ बुरा, something bad होने से, from यहाँ पर प्रपोजिशन है, from happening. after प्रपोजिशन वर्ब की आईएनजी के साथ यूज करते हैं हम. उसे टीम से निकाल दिया गया. सपोज समवन इज नॉट स्कोरिंग रन फॉर हिज टीम, सो डेफिनेटली सिलेक्टर वॉन्ट सिलेक्ट हिम फॉर नेक्स्ट मैचेस. ही विल ट्राई टू फाइंड हिज बेस्ट सब्स्टिट्यूट आउट ऑफ द प्लेयर्स विच आर इन हिज टीम. सो इट्स इंग्लिश विल बी ही वॉज kicked off. kicked off मतलब निकालना, किससे, टीम से, द टीम. he was kicked off the team. It is a sentence of passive voice. So remember this thing. उसे घर से निकाल दिया गया क्योंकि उसने किराया नहीं दिया. So if you don't pay the rent on time, so nobody will allow you to stay in his house. So it should be your first priority to pay the rent whenever you get the salary. He was kicked off the house because he didn't pay the rent. He was kicked out of the house because क्योंकि he didn't pay the rent. didn't is a contraction of did and not. एम्पायर को अपना निर्णय बदलना पड़ेगा. whenever any of the team has taken the DRS and umpire proved to be wrong, so definitely umpire will have to change the decision on field to the right one. So umpire also commit mistake because he is also human being, he is not machine. So this situation is very common in cricket. We used to get this situation whenever we are watching matches. Umpire will have to change his decision. Umpire will have to
चेंज मतलब बदलना, उनका निर्णय, हिज डिसीजन। मैं कभी उसकी सलाह नहीं मानता हूँ जो वो मुझे देता है। When someone is giving you the wrong advice and you have come to know about that, so definitely you should not follow his guidance at all at any cost. I never follow मतलब मानना, the guidance सलाह he gives me, जो आप वॉट से भी बोल सकते हैं, आई नेवर फॉलो द गाइडेंस वॉट ही गिव्स मी, और वॉट नहीं चलाएंगे लगाएंगे तो दैट विल डू ऑल्सो। आई नेवर फॉलो द गाइडेंस ही गिव्स मी। मैं सबके लिए लड़ रहा हूँ। वेन एवर यू आर फाइटिंग फॉर द शेक ऑफ एवरी वंस राइट, सो यू कैन से आई एम फाइटिंग फॉर एवरी वन। आप ऐसे ही बोल सकते हो, अगर आपको बोलना हो मैं उसके लिए लड़ रहा हूँ तो आप बोलेंगे आई एम फाइटिंग फॉर हर। मैं उस लड़की के लिए लड़ रहा हूँ। आई एम फाइटिंग फॉर दैट गर्ल। इट इज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड आई के साथ एम आता है विद ING इन द मैन वर्ब, रूल है ये, ठीक है। उसने कुत्ते को लात मारी। ही शुड नॉट हैव डन सो बिकॉज डॉग इज अ लिविंग थिंग, ही विल ऑल्सो फील पेन वेन एवर ही विल बी किक्ड बाय एनी वन, सो ही शुड नॉट हैव डन सो अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू। ही किक्ड द डॉग, इट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और किक्ड सेकेंड फॉर्म है किक्की बिकॉज सेकेंड फॉर्म यूजेस इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ओके। मैंने अपने पापा के मार्गदर्शन में गाड़ी चलाना सीखी, तो इसकी इंग्लिश होगी अंडर माई फादर्स गाइडेंस आई लर्नड हाउ टू ड्राइव। क्या होगी इसकी इंग्लिश? अंडर माई फादर्स, एपस्ट्रॉफी एस इन फादर, अंडर माई फादर्स गाइडेंस मतलब मार्गदर्शन, आई लर्नड मैंने सीखी क्या, हाउ टू ड्राइव गाड़ी कैसे चलाते हैं, आई लर्नड हाउ टू राइड साइकिल कैसे चलाते हैं, हाउ टू राइड साइकिल, हाउ टू राइड मोटरसाइकिल, ऐसे आप बोल सकते हो। मुझे समझ नहीं आता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। Whenever you are unable to understand a topic which is being discussed by someone, so you can use this sentence at the time in front of that guy. I don't understand what you are talking about. I don't understand इतना present indefinite tense का sentence है। What जो तुम कर रहे हो, ये present continuous का हो गया। What you are talking about. नोबल प्राइज जीतना मेरा सपना है। सो यू हैव अ बिग ड्रीम, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक फॉर एवरीवन टू विन अ नोबल प्राइज। सो इसकी इंग्लिश होगी इट्स माई ड्रीम, ये मेरा सपना है। ज्वाइनिंग द सेंटेंस यूजिंग इन्फिनेटिव टू विन। इन्फिनेटिव के बाद हम हमेशा वर्ब विद फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। इट्स माई ड्रीम, ये मेरा सपना है। टू विन जीतना, क्या जीतना? नोबल प्राइज, टू विन आ नोबल प्राइज। चलो देखते हैं कौन जीतता है। Whenever you are watching any of the matches nowadays, IPL is going on, so it's very interesting to watch all the matches and to predict which team will win before playing the match. So whenever you are estimating and discussing it with a friend, so you can say let's see, चलो देखते हैं कौन जीतता है, who wins. Let's see who wins. There is as in win. Okay, so remember this thing as well. Next sentence, कौन सी टीम जीतेगी? सो इसकी इंग्लिश होगी विच टीम विल विन। क्या होगी इसकी इंग्लिश? विच टीम मतलब कौन सी टीम जीतेगी, विल विन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, और विल हमारा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। सो यू कैन इजीली ट्रांसलेट दिस सेंटेंस एंड टॉकिंग अबाउट द विच वी यूज विच whenever we are talking about two things. Now match will be played within two teams, and if there is we are talking about more than two, so we use what rather than using which. Okay, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन जीतता है, that means you are not biased towards any of the sides, you are supporting both of the sides with equal dedication of yours, so it's a good thing. It doesn't matter to me, मुझे फर्क नहीं पड़ता, इतने की इंग्लिश होगी it doesn't matter to me. We are using does not because of it is a singular subject. If there would be plural one, we use do not in the place of does not. Okay, so remember this thing, it doesn't matter to me who wins, it doesn't matter to me who wins.
तुम पागल से बहस में नहीं जीत सकते हो। सो इट्स अ रियल फैक्ट। यू कांट विन एन आर्गूमेंट विद एन इडियट। यहाँ पर मैंने एन आर्टिकल का यूज़ किया है आर्गूमेंट से पहले और इडियट से पहले। लेट मी एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट बिहाइंड इट। आर्गूमेंट ए से स्टार्ट हो रहा है एंड इडियट आई से स्टार्ट हो रहा है। दोनों बॉबल्स आते हैं। बॉबल्स हमारे 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। सो इसके बिफोर आपको आर्टिकल एन का यूज़ करना होता है विद अंडरस्टैंडिंग द साउंड ऑल्सो। समटाइम्स अल्फ़ाबेट तो होता है ए ई आई ओ यू, बट साउंड डिफर होता है। सो कभी कभार ऐसा भी होता है धोनी अच्छा नहीं खेला, वो और रन बना सकता था। धोनी डिडंट प्ले वेल, ही कुड हैव स्कोर्ड मोर रन्स। धोनी डिडंट प्ले वेल, ही कुड हैव स्कोर्ड मोर रन्स। यहाँ पर कुड हैव का स्ट्रक्चर यूज हुआ है सकता था के सेंस में विद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पर भी हैव आ जाता है, उसमें हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। विराट कोहली खुश हो गया जब धोनी आउट हुआ बिकॉज दे वर प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर। सो इट्स ऑब्वियस थिंग वेन एवर धोनीज विकेट विल डाउन विराट कोहली वुड बी वेरी हैप्पी। सो इट्स ऑब्वियस थिंग। सो इसकी इंग्लिश होगी विराट कोहली गॉट हैप्पी या फिर बिकेम हैप्पी व्हेन धोनी गॉट आउट। विराट कोहली गॉट हैप्पी या फिर बिकेम हैप्पी व्हेन धोनी गॉट आउट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस। मेरे पास अकेले काम करने की हिम्मत नहीं है। So whenever you are too exhausted and too tired, maybe you have come back from somewhere after a long journey you have done, so that is why you are feeling tiredness. I don't have the power to finish the work alone. I don't have the power, मेरे पास ताकत नहीं है क्या करने की, to finish ख़त्म करने की काम को, the work अकेले, alone. So you can easily translate I don't have the power to finish the work alone. मैं तुम्हारी मदद करने के लिए कुछ भी करूँगा। So whenever someone is a true friend of yours, so definitely he can go to any extent to help you. So it's a good symbol, it's a good thing. In friendship it should be there. I will do everything, मैं सब कुछ करूँगा, to help you. I will do everything, future indefinite tense, to help मदद करने के लिए किसकी, तुम्हारी, you. ओके विराट कोहली मेरा फेवरेट क्रिकेटर है। ही इज़ अ वेरी इंस्पायरिंग गाय। यू कैन गेट अ लॉट ऑफ मोटिवेशन आउट ऑफ हिम इफ यू विल वॉच हिज जर्नी बिकॉज ही लॉस्ट हिज फादर क्वाइट अर्ली एंड इवन आफ्टर ही डिडंट स्टॉप प्लेइंग क्रिकेट। इट्स अ वेरी टफ जॉब, दैट इज़ वाई आई लाइक हिम एंड आई ऑल्सो लाइक द वे हाउ ही बैट्स। ही यूजली डोंट गेट आउट ईजीली। विराट कोहली इज़ माई फेवरेट क्रिकेटर। हमने इसका यूज़ इसलिए किया है बिकॉज विराट कोहली केवल एक ही गाय है ऑन विच वी आर डिस्कसिंग। तो रिमेंबर दिस थिंग, अगर हम दो लोगों की बात कर रहे होते हैं और दो के बारे में फेवरेट बोल रहा होता तो मैं आर का यूज करता रेदर देन यूजिंग इज। लॉटरी टिकट्स बस पैसे की बर्बादी है। टोटली डिपेंड्स ऑन योर लक, हाउ योर लक इज सेड टू बी, वेदर यू विल विन और लूज। सो दीज आर द टू एस्पेक्ट ऑफ द लॉटरी। इट मे बी गुड फॉर दोज हु हैव वॉन एंड इट मे बी बैड फॉर दोज हु हैव लॉस्ट द लॉटरी टिकट्स आउट देयर। सो इट्स इंग्लिश विल बी लॉटरी टिकट्स आर अ वेस्ट ऑफ मनी। लॉटरी टिकट्स, यहाँ पर हम बहुत सारी टिकटों की बात कर रहे हैं इसलिए हमने आर का यूज़ किया है। केवल अगर हम बोले लॉटरी टिकट इज बोल सकते हैं फिर उसके आगे, ठीक है। यहाँ पे एस लगा है टिकट्स में इसलिए आर का यूज़ हुआ है। लॉटरी टिकट्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम और मनी। अगर मनी बोलना है तो मनी बोल सकता है वेस्ट ऑफ मनी, और टाइम बोलना है वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। सो हियर कम्स अवर क्वेश्चन ऑफ द डे इन व्हिच आई एम गोइंग टू आस्क यू ट्रांसलेशन ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस आपकी डिस्प्ले पे आ जाएगा विद इन अ सेकेंड एंड हियर वी हैव द सेंटेंस। सेंटेंस है मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ। सो यू आर सपोज टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश। सो लेट मी टेल यू सम हिंट रिगार्डिंग दिस सेंटेंस। इट इज़ अ सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ, रहा रही इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। सो आई होप you have enjoyed this video. If you really enjoyed this video, don't forget the like button. If you're new on this channel, must subscribe to English Ka Gyan YouTube channel. I will meet you and catch you in next video. Till then, Jai Hind, Vande Mataram. Keep supporting, keep sharing, keep liking my video. So I will meet you and catch you in next video. Till then, Jai Hind, Vande Mataram. Share this video with a friend who wants to learn English with these types of daily use English sentences, because I come up with a daily use English sentences videos on my channel. So you are most welcome to watch all those videos of mine which are available on my channel. So meet in next video. Catch you next video. Till then, Jai Hind, Vande Mataram.